Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 4 science, that is nutrients in food. You know, our food has many nutrients like vitamins, minerals and many other things. We should take nutrients in a proper quantity. So let's read about this. When we come back to home from school, जब भी हम अपने स्कूल से वापस आते अपने home, we feel hungry and we ask for food. हमें भूख लग रही होती है, we feel hungry और हम अपने मतलब से अपने फूड के लिए पूछते हैं. Our body needs energy to move. क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट करने के लिए, वर्क एंड प्ले के लिए. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. ये एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास? फूड से आती है. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी विल फील लो, वी विल नॉट फील एनर्जेटिक. फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. फूड क्या है? असेंशियल है बहुत ज़्यादा सब लिविंग थिंग्स के लिए. इट हेल्प्स टू ग्रो एंड टू फाइट डिजीज. किसमें हेल्प करता है? ग्रो करने में और डिजीजेस को फाइट करने में हेल्प करता है फूड. When we sleep, our body uses energy to keep internal organs like the heart, stomach, brain and lungs working. जब भी हम सो रहे थे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है किस लिए? वर्क करने के लिए. कई जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होता है लाइक हार्ट, स्टमक, ब्रेन एंड लंग्स जो भी वर्क करता है, किडनीज, इनको भी तो एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए. लेट अस फाइंड आउट वेयर डू वी गेट दिस फूड फ्रॉम. अब हम एक पता लगाते हैं हमें फूड कहाँ से मिलता है. सोर्सेज ऑफ फूड. We get food from plants and animals. Our food comes from plants and animals. Plants are our biggest sources of food. क्या है हमारे biggest sources of food? Plants. Plants are the biggest sources of food. They give us fruits, vegetables, cereals, pulses, oil, seeds, spices, tea and coffee. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? Plants से और animals से मिलता है. Plants से मिलता है. Animals give us meat, eggs, milk and fish. क्या मिलता है? Milk, meat, eggs and fish we get from animals. Now let's talk about nutrients. What do you mean by nutrients? It includes fats, vitamins, carbohydrates, proteins, etc. We eat a large variety of food items. हम बहुत एक large variety of food items को खाते हैं. There are 5 different components in our food. हमारे food के अंदर 5 different components होते हैं. उनको क्या कहते हैं? Called nutrients. The major nutrients in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These all are the major carbohydrates. These nutrients are needed for growth, maintenance and repairing of our body and energy production. किस में needed है? Growth में, maintenance में, repairing of our body cells and energy production के लिए needed होते हैं. Now let's talk about categories of food. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? Food की categories के बारे में. Different types of food nutrients can be classified according to their function into following categories. First one, energy giving food. क्या होता है energy giving food? These are carbohydrates and salts. Carbohydrates and fats are the energy giving food. Second is body building food. Body building food क्या होता है? जो आपकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, मसल्स को डेवलप करता है. They all are the proteins. Proteins are the body building food. Now protective food. Protective food क्या होते हैं? जो आपको disease से बचाते हैं, जो rickets वगैरह जो different diseases होती हैं उनसे बचाते हैं. That are vitamins and minerals. These are the protective food. Roughage. Roughage भी आपको digest करने में help करता है. Stored energy food. जो stored energy foods होते हैं like fats. Now let's talk about energy giving foods, carbohydrates and fats. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं टू वर्क एंड टू प्ले एंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस. कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के सारी फंक्शंस के लिए. दे आर कंपोज्ड ऑफ शुगर. किसके बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? शुगर के बने होते हैं. और बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. किस बॉडी ब्रेक करती है कार्बोहाइड्रेट्स को? ग्लूकोज में क्या करती है? ब्रेक करती है टू गिव एनर्जी. किसके लिए? एनर्जी देने के लिए. These nutrients give us quick energy when we are playing, exercising and working. ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एकदम एनर्जी देते हैं जब हम क्या करते हैं? वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर वॉक कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं.
That is why eating a large amount of carbohydrate is necessary for those people who work hard. ईटिंग क्या होती है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हम जो ज़्यादा खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. दे शुड हैव मेनी कार्ब्स इन देयर डाइट. नाउ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो हमारे सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? लाइक राइस, व्हीट, ब्रेड एंड शुगर. क्या ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड स्वीट्स, दीज आल्सो आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. लेट्स टॉक अबाउट फैट्स. फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. फैट्स है ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है. दे प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमें और भी ज़्यादा एनर्जी देता है किससे? कार्बोहाइड्रेट्स की जगह. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट्स. हमारी बॉडी को बहुत ही कम फैट की नीड होती है. कंजप्शन ऑफ फैट इन एक्सेस इज नॉट गुड. जो ज़्यादा हम कंजप्शन करते हैं फैट का वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता फॉर हेल्थ, इसलिए हेल्थ के लिए, as they got stored in the body and increase body weight. जैसे कि वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में और बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. So we should take fats in a minimal amount. Now sources of fat. Fat कहाँ से आता है? Animal fat, मतलब animal fats होते हैं like butter, cheese, ghee, milk, oil, fish. These all are the animal fats. Animal fats: butter, cheese, milk, fish, oil, meat, chicken. और वेजिटेबल फैट्स क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल एंड सनफ्लावर सीड्स. नट्स, आलमंड्स क्या होता है? ग्राउंड नट्स, कैश्यू नट्स एंड पिस्ताचोस. ये क्या होता है? हमारे सारे हमारे फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी में फैट बिल्ड करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर. ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ में, अब सेल्स को रिपेयर कर देते हैं. जैसे इफ़ यू वेंट थ्रू एन एक्सीडेंट, तो जो पे चोट लग जाती है वो किससे हील होती है? प्रोटीन्स की वजह से हील होती है. प्रोटीन्स आर नीडेड नॉट ओनली फॉर मसल्स बट ऑल्सो फॉर हेयर, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स. प्रोटीन खाली हमारी बॉडी को किसके लिए नीडेड नहीं होता? मसल्स के लिए नहीं होता, बट किसके लिए होता है? हेयर्स के लिए, स्किन के लिए और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए नीडेड होता है. When we get hurt और bruised, जब भी हम hurt हो जाते हैं, bruised हो जाते हैं, they help us to repair worn out or damaged cells. As I told you, जब भी आपको hurt होता है या आपकी कोई चोट लग जाती है तो help करता है आपके cells worn हुए हैं या फिर उनको जो damaged cells हैं उनको repair करने में. Now sources of protein. आपको protein कहाँ से मिलता है? You get protein from animal sources like milk, egg, cheese, meat और fish. ये आपको यहाँ से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. प्लांट सोर्सेज होता है पल्सेस, बीन्स, सोयाबीन एक्सेट्रा. दीज आर योर प्लांट सोर्सेज. लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्टिव फूड. क्या होता है प्रोटेक्टिव फूड? जो आपको डिफरेंट डिजीजेस से बचाते हैं, लाइक रिकेट्स एंड मैनी अदर डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड मैनी मोर. वो क्या होता है? लाइक विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स का किस में होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है. They protect you from many diseases. That's why they are called protective foods. Vitamins are organic substances present in small amount. Vitamins होते हैं organic substances होते हैं किसमें? Present होते हैं small amount में in a variety of food. They are required for carrying out vital functions of the body. वो किस लिए important होता है? हमारी body के vital functions को perform करने के लिए. Although they are needed in small amounts. इसलिए कभी वो small amounts में भी चाहिए होता है. They keep us healthy and protect us from disease. वो क्या करते हैं? हमें healthy रखते हैं और हमें disease free रखते हैं और हमें protect करते हैं diseases से. Let's talk about sources of vitamins. Vitamins के क्या क्या sources होते हैं? Animal sources होते हैं vitamins के meat, eggs, fish and milk. These are the animal sources. Second one is plant source, that are pulses, fruit and vegetables. Pulses हो गए, fruits हो गए, vegetables हो गए. These are the sources of vitamins of plant sources. Now functions of vitamin. Vitamins के क्या क्या functions होते हैं? Vitamin D, it helps in building calcium in your body. It builds your bones strong. Vitamin D in milk, egg yolk, cod liver oil, fish is good for strong bones and muscles. किस लिए good होता है? Vitamin D strong bones के लिए और muscles के लिए good होता है. Vitamin A किस लिए होता है? Vitamin A in carrots, fish and eggs is good for eyesight.
This food is good for your eyesight. Vitamin C. Vitamin C in oranges, lemon, tomatoes is good for bones, teeth, gum. Vitamin C आपकी bones के लिए, teeth के लिए, gums के लिए and skin के लिए बहुत अच्छा होता है. Now vitamin B. Vitamin B किस लिए होता है? Vitamin B in leafy green vegetables. जो leafy green vegetables में होता है soyabeans, bananas, egg, milk, legumes is good for heart and nerves. किस लिए होता है? हमारी heart के लिए और nerves के लिए अच्छा होता है. Let's talk about minerals. Minerals क्या होता है? These are present in large number in our body. A large number of minerals are present in the body. They are required in small quantities and are obtained from food. वो बहुत small quantities में required होता है. कहाँ से मिलते हैं हमें? Food से मिलते हैं minerals. Some of these minerals are calcium, iron, potassium, phosphorus and sodium. क्या क्या होता है? Minerals, calcium, iron, phosphorus and sodium. These all are the minerals that our body need in a small amount. Calcium and phosphorus are essential for bones making bones and teeth strong. कैल्शियम और फॉस्फोरस किस लिए एसेंशियल होते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के बोन्स और सेल्स, बोन्स एंड टीथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड. आयरन नेसेसरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है ना हीमोग्लोबिन का, उसके लिए नेसेसरी होता है. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू अनीमिया. जो डेफिशिएंसी होती है आयरन की, ओके क्या लीड करती है? अनीमिया में लीड करती है. अनीमिया हो जाता है उससे. नाउ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. हमें मिनरल कहाँ से मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से, जूसेस से. कैल्शियम एंड मिल्क, योगर्ट, चीज, एग एंड सोयाबीन इज गुड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स. जो कैल्शियम होता है हमारा योगर्ट में, चीज में, एग्स में, सोयाबीन्स में, किसके लिए अच्छा होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड करने में. सेकेंड, फॉस्फोरस इन गार्लिक. जो फॉस्फोरस होता है कहाँ? गार्लिक में. सनफ्लावर सीड्स, कॉर्न एंड ब्रोकली, बनानास एंड फिश हेल्प द मसल्स टू वर्क. किसमें हेल्प करता है? हमारी मसल्स को वर्क करने में. थर्ड, आयरन इन एप्पल जूस. आयरन जो होता है हमारे एप्पल जूस में. ब्रिंजल, ड्राइड फिग, स्पिनच, एप्रिकॉट, कैरेट एंड बीटरूट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप आवर टीथ. ये हमारी बिल्ड करता है टीथ्स को, बोन्स को एंड ब्लड बढ़ाता है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड को ज़्यादा बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर. नाउ रफेज. रफेज क्या होता है? द fibrous material of fruits, vegetables and other which cannot be digested by the body. जो easily digest नहीं होता हमारी बॉडी से, that is called roughage. It has no nutritive value. उसकी zero nutritive value होती है. It prevents constipation and helps in proper movement of the digested food in the intestines. वो प्रॉपर क्या करता है? वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, प्रॉपर मूवमेंट करवाता है हमारी बॉडी का, जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी बॉडी के. दैट इज गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन. नाउ सम सोर्सेज ऑफ रफेज. सो हमें कहाँ कहाँ से रफेज मिलता है? रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैश कॉर्न, कोर्स व्हीट आर स्ट्रॉन्ग गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. क्या क्या होता है? फ्रूट्स, मैश कॉर्न, कोर्स व्हीट, ये हमारे बहुत अच्छे सोर्सेज है किसके? रफेज के. नाउ वाटर. वाटर क्या होता है? Our body contains about 70% of water. हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर होता है. एंड एवरी वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन्स वाटर. और हर वेजिटेबल में क्या होता है? वाटर होता है. इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड. क्या होता है इसमें? एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसके? फूड के. इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज. लार्ज क्वांटिटीज में नीडेड होता है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी सिस्टम. क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? हमारी बॉडी के सिस्टम में. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. हमें वाटर कहाँ से मिल सकता है हमारी बॉडी के अंदर? वी ऑब्टेन वाटर फ्रॉम ड्रिंक्स सच एज फ्रूट जूसेस, कॉफीज, प्लेन वाटर, टी एंड मिल्क. इससे हमें हमारी बॉडी के अंदर वाटर मिलता है. वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड राइप फ्रूट्स. हमें राइप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर मिल सकता है. नाउ बैलेंस डाइट क्या होती है? We have studied balanced diet many times. The proper amount of food, proteins that we take in our body in a proper quantity, that is called the balanced diet. The diet which is taken at the proper times, like breakfast in the morning, lunch in the evening, lunch in the afternoon, dinner at night. So that is called the balanced diet.
A diet containing all essential nutrients. जिस डाइट में सारे essential nutrients होते हैं, required quantities in required quantity, proper जितनी भी required quantity हमारी body को, that is called the balanced diet. It is necessary for the proper growth and functioning of the body. किस लिए necessary है? हमारी body के proper growth में और proper functioning में हमारी body के necessary है. A balanced diet has energy giving foods. बैलेंस डाइट में क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड्स होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. इन सफिशिएंट क्वांटिटीज होता है ये सारे फूड्स. द फूड पिरामिड हेल्प अस टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड. जो फूड का पिरामिड है वो क्या हेल्प करता है हमें? दिस पिरामिड हेल्प अस टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड every day to get all nutrients we need to grow strong. जो भी हमें बॉडी को नीड होता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मसल्स ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को जो जो फूड नीड होता है वो हमें बैलेंस डाइट के थ्रू मिल जाता है. एंड बिग एट द सेम टाइम. Eat the right amount of calories. You should always eat the right amount of calories. आपको excess amount of calories intake नहीं करनी चाहिए. Now junk food. Junk food क्या होता है? Any food that has proper nutritional value and has high fat or sugar level. जो भी फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं या हाई फूड एंड शुगर लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड जंक फूड. उसको कहते हैं जंक फूड कहते हैं. इट इज easy to carry, purchase and consume such food. Has no calorific value and it lacks micronutrients such as vitamins, minerals and fiber but has high energy calories. इस फूड को लेना परचेज करना बहुत इजी होता है, बनाना भी बहुत इजी होता है, बिकॉज इसमें हाई कैलोरीज होती हैं और दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. उसमें सच एज इट हैज़ नो कैलोरिफिक वैल्यू. उसकी नो कैलोरिफिक वैल्यू होती है. इट लाइक्स ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं. बर्गर, पिज्जा, चिप्स, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता एक्सेट्रा आर द जंक फूड. क्या होते हैं जंक फूड? बर्गर हो गए, पिज्जा दैट यू ईट एवरी डे. ऑल ऑफ यू ईट पिज्जाज, दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, दैट इज कॉल्ड द जंक फूड. नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? इफ वी टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, जो अगर हम लेते हैं एक पीस ऑफ ब्रेड लेते हैं, wet it with a few drops of water and leave it outside. और उसे wet कर देते हैं few drops of water से बाहर छोड़ देते हैं. For few days you will see thread-like structures growing on bread. फिर हमें देखेंगे thread-like structures होता है वो bread पे grow कर रहे होते हैं. which is type of mold. उसको क्या कहते हैं? Mold कहते हैं. When food comes in direct contact with air and moisture. जब भी फूड आता है डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर और मॉइस्चर के, मोल्ड एंड जर्म्स फॉर्म बिगिन टू ग्रो ऑन इट. मोल्ड और जर्म्स जो होता है उस फूड पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सच फूड इज बैड फॉर आवर हेल्थ एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग. वो फूड क्या होता है? बहुत ज़्यादा बैड होता है हमारी हेल्थ के लिए और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. वी कैन प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम बाय वेरियस टेक्निक्स. हम क्या कर सकते हैं? उस फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए through various techniques. These are as follows. Here are the methods of food preservation. By boiling method, boiling helps to kill germ. जो boiling होती है आपके जो भी वाटर में या किसी फूड में germs प्रेजेंट होते हैं वो किल कर देते हैं. Refrigeration and freezing. Refrigerating and freezing helps to preserve food for longer time. आप रेफ्रिजरेशन की हेल्प से या फ्रीजिंग की हेल्प से आप अपने फूड को बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो. कैनिंग. कीपिंग कुक्ड फूड इन एयर टाइट कैन्स इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड. जो भी आपका फूड कुक्ड होता है उसे आप एयर टाइट कैन्स में रखते होंगे तो वो एक इफेक्टिव वे होता है. किसके लिए? कुक्ड फूड के लिए. मैनी फूड आइटम्स सच एज ग्राम्स, वेजिटेबल्स, फिश एक्सेट्रा आर कैन्ड एंड सोल्ड इन मार्केट. जो भी आइटम्स होते हैं लाइक फिश, your pizzas and sometimes burgers, vegetables and fish, ये होता है अच्छे से कैन करके रख देते हैं और इनको मार्केट में सेल कर देते हैं. सॉल्टिंग. Salt act as a food preservative and is added to chips and pickles. जो आपका पिकल्स होता है अभी मदर एंड ग्रैंड मदर डालती हैं वो किसमें हेल्प यू? उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट हम उसमें डालते हैं, वो अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है फूड को. सॉल्ट की वजह से जर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते. Now here is a recap of this whole lesson. First point, the food we eat comes from plants and animals. जो भी हम फूड खाते हैं कहाँ से आता है हमारे पास?
प्लांट से या फिर एनिमल से आता है। सेकेंड, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। दीज आर द major nutrients. Third point, proteins are the body building blocks. प्रोटीन्स क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर। क्या करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में और रिपेयर करने में। जो भी आपके डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको इजीली रिपेयर कर देते हैं प्रोटीन्स। फोर्थ पॉइंट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। किसमें हेल्प करते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में। Last one, a diet containing all the nutrients. Just diet में all the nutrients हो is required in required quantity. जो भी आपकी बॉडी के required quantity है that is called a balanced diet. उसको क्या कहते हैं आप? Balanced diet कहता है। We should have the balanced diet every time. हमें अपनी डाइट को unbalanced नहीं करना चाहिए. That helps in proper growth of our body. So that's all for this lesson. I hope you all liked the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.